Good morning everyone. Today we are going to study about the solid shapes. What is solid shape? Yes, we have to study about the solid shapes. Solid shapes are also known as 3D shapes. Till here we studied the plane shapes. Plane shapes. सर ये प्लेन शेप्स क्या होते हैं? क्या हमने प्लेन शेप्स पढ़े हैं जिनको हम 2D शेप्स भी बोलते हैं? सर ये D क्या है? D इज डायमेंशन. सर डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन हम आपको समझाते हैं. देखो, इफ आई ड्रॉ अ रेक्टेंगल, if I draw a rectangle, it has only length and breadth, right? If anything which has only length and breadth, if anything, any object, any shape has only length and breadth, मतलब उसकी चौड़ाई हो और लंबाई हो, ऐसे शेप्स को हम लोग प्लेन शेप्स बोलते हैं. यू कैन सी इट एज अ पेज. ओके, आप पेज को देखो. दिस पेज हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ. देयर इज नो हाइट. ओके, देयर इज नो हाइट. सिमिलरली वी लर्न अबाउट द स्क्वायर. हमने स्क्वायर में भी पढ़ा था. जितने भी प्लेन फिगर्स हैं हमने पॉलीगन्स जितने भी पढ़े. ओके, पॉलीगन्स. पॉलीगन्स और उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? सर्कल पढ़ा. पॉलीगन्स एंड सर्कल्स आर द प्लेन शेप्स. जितने भी पॉलीगन है वो सारे के सारे 2D हैं और सर्कल भी हमारा 2D है. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द सॉलिड शेप्स. वी आर मूविंग टू द सॉलिड शेप्स, राइट? What is a solid shape? Listen very carefully. What is a solid shape? Solid shape is a 3D shape. Yes, solid shape is a 3D shape and one minute. Solid shape is a 3D shape. You can see here. Very good, Tanis. If you have done that, this is a solid shape. ऐसी चीजें जिसमें हम कुछ रख सकते हैं उनको solid shape बोलते हैं, right? Like this is a VR box, but what is the shape of this VR box? This is a shape of cuboid. Very good, Madhav. This is a cuboid shape. Very good. Everyone should answer. Arnav, sorry. Very good. It is a cuboid shape. Why you can say it is a cuboid? And here we have a duster, right? Here we have a duster. You can see what type of shape it is. Cuboid. Very good Devang, very good. And I have another duster. This is also cuboid. But what happen if I have a pen? What shape it has? इसकी क्या शेप है? जल्दी बताओ मुझे, इसकी पेन की क्या शेप है? Everyone should. Cylinder. Very good, Tanis. Very good. It is a cylinder. Very good, Chavi. Very good, Arnav. Now I have a bottle. इसकी क्या शेप है? What the shape it has? Very good, Kesav. It's a cylinder. It's also a cylinder. So the things which occupies space, or we can put something in the box, और हम जिसमें कुछ रख सकते हैं. वाटर बोतल में हम पानी वाटर रख सकते हैं, right? So now we are learning the solid shapes. Solid shapes, right? सॉलिड शेप्स ये 3D होते हैं. ये कैसे होते हैं? 3D होते हैं, राइट? 3D. D is for dimension. D is for dimension.
राइट, डी इज फॉर डायमेंशन। सर यहां तो हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ थे, तो थर्ड कौन सी चीज आ जाती है? तो देखो हमारे पास लेंथ भी है, हियर वी हैव लेंथ and the breadth. Yes, you can see here, this is the length and the breadth, right? But what we have? Height also. We have height also, right? You can write now, if an shape has length, if a shape has length, breadth and height, right? If a shape has length, breadth and height, then it is a 3D shape. Then it is a 3D shape. तो यहां पे हमें क्या एक्स्ट्रा मिल गया? हाइट एक्स्ट्रा मिल गई। ये आपको प्लेन मिलेगा, इसमें हम चीजें नहीं रख सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट वाली चीज ऑब्जेक्ट होगा, लाइक दिस बॉक्स, देन आई कैन पुट एनीथिंग इन दिस बॉक्स। यू हैव अ शू बॉक्स, यस, इफ आई ओपन इट एंड आई कैन पुट एनीथिंग इन इट, सो दिस इज अ 3D बॉक्स, राइट? बट नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द 3D shapes. Okay, so if I draw an object, if I draw this box on the board, अगर मैं ये बॉक्स को बोर्ड पर बनाता हूं तो देखो मुझे कैसा बनाने के लिए मिलेगा। I will draw this box on the board. I know many of you can draw, right? So this type of a figure you will have on the board if I draw this box. So here we have, this is the length, this is the length. Now this is the height and this is the breadth, right? It has length, breadth and height, but the 2D shape has only length and breadth. There is no height in the 2D shapes. So the difference between 2D and 3D you can see here. Solid shapes में क्या क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता है फेस। क्या होता है? फेस होता है। और क्या होता है सर? और एज होती है। क्या होती है? एज होती है ना? और क्या होता है सर? और वर्टेक्स होता है। और आप इसे वर्टिसेस भी बोल सकते हो, वर्टाइसेस भी बोलते हैं, है ना? सो इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स, राइट? वर्टिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। ये तो सॉलिड शेप्स के हो गए, और ये सॉलिड शेप्स, राइट? और प्लेन शेप्स के लिए क्या था? लेंथ थी, ब्रेथ थी, और क्या क्या था? सिर्फ एक साइड्स थी, और क्या था? वर्टिसेस थी। देखो प्लेन शेप्स में हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दो ही चीजें होती हैं, तो हमारे पास उनसे बनेगा ही क्या? साइड्स बनेंगे और वर्टिसेस मिलेंगे, राइट? बट यहां पे 3 थिंग्स है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो हमें क्या क्या मिलेगा? फेस मिलेगा, एज मिलेगा और वर्टिसेस मिलेगी। व्हाट इज फेस? फेस क्या होता है? देखो फेस आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, फेस वैल्यू, है ना? आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, फेस वैल्यू पढ़ा था ना? ये वो वाला फेस नहीं है ना? ये डिफरेंट फेस है, ये दूसरा कोई फेस है। अभी देखते हैं हम। सो आई हैव दिस ऑब्जेक्ट, ओके, आई हैव दिस 3D shape box, you can see very well, and I am going to tell you what is the face. देखो बेटा, जहां भी मेरा ये स्केल रख सकता हूं मैं प्रॉपरली, क्या मैं इसके ऊपर रख सकता हूं स्केल को? हाँ जी सर, आप रख सकते हो, आप सबको दिख रहा होगा। सो दिस इज अ वन फेस, दिस इज वन फेस, FACE, दिस इज वन फेस। अगर मैं यहां रख सकता हूं तो मेरा ये पहला फेस है, ओके। फिर मैं इसको थोड़ा सा और घुमाता हूं, मैं यहां रख सकता हूं इसको, हाँ जी सर आप रख सकते हो, ये दूसरा फेस है, ओके। मैं इसको और घुमाता हूं तो मैं यहां रख सकता हूं क्या? हाँ जी सर आप रख सकते हो, ये थर्ड फेस है, ओके। क्या मैं यहां रख सकता हूं?
हाँ जी सर, आप यहां भी रख सकते हो। दिस इज अ फोर्थ फेस। तो आपको 4 फेस पता चल गए, 1 2 3 एंड 4, है ना। 1 2 3 एंड 4 फेसेस। आप जहां पे स्केल को रख सकते हो, बिल्कुल प्लेन जो होगा उसको हम फेस बोलेंगे। अब इसमें 4 तो हो गए सर, बाकी के और भी हैं क्या इसमें फेस? जल्दी बताओ, कैन वी हैव मोर फेसेस इन दिस? यस और नो? जल्दी से बोलेंगे यस, 2 मोर फेसेस। हाँ जी, एक ये रहा सर, आप यहां भी तो रख सकते हो इसको। हाँ जी, वेरी गुड। सो दिस इज द 5th वन, एंड आप यहां भी तो रख सकते हो इसको। दिस इज द 6th वन। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6. Total number of faces for this box is 6. What is face now? अब फेस आपको क्या लग रहा है, क्या होता है फेस? जल्दी बताओ मुझे, क्या होता है फेस? हाँ जी, फेस इज अ सरफेस। फेस क्या होता है? सरफेस होता है, फ्लैट एरिया, सरफेस को भी बोलते हैं, है ना। सो फेस इज अ सरफेस, और यू कैन से जिसको हम ऊपर कुछ रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एजेस पे। व्हाट इज एजेस? एजेस भी देखो आपको दिखेंगी, है ना। एजेस भी आपको दिखेंगी। 2 फेस, ये दोनों फेस, एक ऊपर वाला और एक ये वाला, कहां मिल रहे हैं? इस लाइन पर मिल रहे हैं, इस लाइन पर मिल रहे हैं, है ना। इसी लाइन पर मिल रहे हैं ना, या कहीं और मिल रहे हैं? ये दोनों फेस, एक ये वाला और एक ऊपर वाला फेस, ये इसी लाइन पर मिल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कॉर्नर्स नहीं, कॉर्नर्स नहीं, कॉर्नर्स डिफरेंट थिंग होती है ना। कॉर्नर्स भी बताऊंगा मैं, कॉर्नर्स अलग चीज होती है। आप देखो, अच्छा अपने आप रूम को देखो, बिल्कुल सामने एक दीवार दिख रही है, बिल्कुल सामने एक दीवार है और एक दीवार पीछे है। यू हैव अ वॉल, यू हैव अ वॉल इन फ्रंट ऑफ यू एंड इन बैक ऑफ यू, राइट। देयर आर 2 वॉल्स। अब एक और वॉल देखो, कहीं और दिख रही है वॉल। आपके लेफ्ट में भी एक वॉल है और राइट में भी एक वॉल है। देखो, लेफ्ट में भी एक वॉल है और राइट में भी वॉल है। क्या और भी कोई वॉल है? हाँ जी, एक आपका फर्श है जो आप वहां पे जमीन पर देख रहे हो, जहां पे टाइल्स लगी होंगी, और एक ऊपर भी है, अपर, राइट। और जहां पे आपका सीलिंग फैन, जिसको सीलिंग भी बोलते हैं। सो देयर आर, दीज आर द फेसेस, है ना। जो भी आपकी वॉल्स हैं वो आपकी फेसेस हैं, है ना। और जो आपकी सीलिंग है वो भी फेस है, और जो आपका फ्लोर है वो भी आपकी फेस है ना। तो ये सरफेस हो गई। अभी आप देखो काउंट करके, क्या आपके जो रूम है उसमें 6 फेस हैं? देखो, 4 तो वॉल्स हो गई, है ना। 1 2 3 4 वॉल्स हो गई, एक सीलिंग हो गया 5 और फ्लोर हो गया 6, ठीक है। तो ये हमारा सरफेसेस, फेसेस क्लियर हो गए। तो आपको मैं यहां पे दिखाता हूं, है ना। यहां पे मैं इस बॉक्स को खोलता हूं, फिर आप इजीली देख पाओगे, है ना। मैं आपको ये बॉक्स ओपन करके दिखाता हूं, फिर आप इजीली देख पाओगे, ठीक है। अभी यहां पर देखो, मेंशन करता हूं मैं कुछ थोड़ा सा, तो आपको एक वॉल तो ये दिख रही है ना, और एक वॉल ये दिख रही है, 2 वॉल दिख रही है। इन दोनों वॉल के बीच में ये लाइन है, ये वॉल और ये वॉल जहां मिल रही है, वॉल जहां मिल रही है, कॉर्नर नहीं, ये वॉल जहां पे मिल रही है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? उस लाइन को क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस लाइन को? एज बोलेंगे। क्या बोल देंगे उस लाइन को? एज बोलेंगे। जहां पे वॉल्स मिल रही है उसी को क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। तो ये हमारी लाइंस हो गई, है ना। जहां पे दो एजेस दो वॉल्स मिल रही हैं आपके रूम की, उसको क्या बोलेंगे? लाइंस बोलेंगे, एजेस बोलेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द वर्टिसेस। वर्टिसेस, हाँ जी बेटा, 12 लाइंस हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो दित्या ने तो लर्न भी कर लिया। व्हाट इज वर्टेक्स? कॉर्नर को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। नाउ अर्नव सूरी, योर क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉर्नर? द कॉर्नर इज कॉल्ड द वर्टेक्स। देखो अपने रूम में कितने कॉर्नर हैं, रूम में कितने कॉर्नर है, सभी लोग काउंट करके बताएंगे। 1 2 3 4 तो ऊपर होंगे, है ना। 1 2 3 4। देखो ये मेरा रूम है, यस, 4 ऊपर है और 4 नीचे फ्लोर पर होंगे। देखो 1, देखो यहां पे 1 2 3 and 4। वी हैव 4 हियर, 1 2 3 4। अब मैं ये तो सीलिंग वाले हो गए। अब आ जाते हैं फ्लोर पे, राइट। अब फ्लोर पे देखो 1 2 3 and 4। 4 + 4 are 8। सो कॉर्नर जहां पे आपको निब जैसा पॉइंट जैसा दिखेगा, वो कॉर्नर जहां पे हमारी एक एज, दूसरी एज और थर्ड एज, जहां पे 3 एज मिलती हैं, जहां 3 लाइन मिलती है, 1
2 और 3 लाइन, जहां पे 3 लाइन मिलेंगी वही हमारा क्या होगा, वर्टिसेस होगा इन सॉलिड शेप्स। आप देखो कॉर्नर टाइप दिख रहा है जिससे आपको लग भी सकती है, अगर आपके ऐसे लग जाए कहीं पर तो उससे लग भी सकती है आपके, यस पिन पॉइंट जैसा दिखता है। सो दिस इज अ कॉर्नर भी बोल सकते हैं हम इसको, और इसको कैसा दिखता है, ये पॉइंट जैसा दिखता है। क्या ये पॉइंट जैसा दिखता है, कॉर्नर पॉइंट जैसा दिखता है क्या आप लोगों को? मुझे तो दिखता है बेटा, यस। तो हमने तीनों चीजें देख ली, यस हमने फेस देखा, एज देखा और वर्टिसेस देखा। सब कुछ आपके रूम में है। आपके रूम में जो वॉल्स हैं वो फेस है, आपके रूम में जो 2 वॉल्स मिलती हैं वो एज है, और जो कॉर्नर है आपके रूम का वो हमारा वर्टेक्स है। देखो आप एक क्यूबॉइड में बैठे हो या क्यूब में बैठे हो, आप किसी ना किसी रूम में बैठे हो, वो रूम क्यूब है या क्यूबॉइड है। किसी किसी का रूम क्यूबॉइड होगा, किसी का रूम क्यूब होगा, है ना, जिसमें हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड दोनों एक ही चीजें होती हैं। जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको अभी समझाएंगे, है ना बेटा। चलो अब हम मूव करते हैं। हमने सारी चीजें देख ली कि फेस क्या होता है, एज क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, साइड्स क्या होती हैं, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, सरफेसेस क्या होती हैं। माय रूम इज क्यूब, वेरी गुड, देखो वेरी गुड, यस सर लाइक शार्प पेंसिल, यस अगर आप कॉर्नर में पेंसिल की निब लेकर जाओगे तो वो लग जाएगी, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ओके, सो द नेम ऑफ फर्स्ट इज, सबसे पहले क्या नाम आएगा, सबसे पहले नाम आएगा हमारा क्यूब, है ना। सबसे पहले कौन नाम आएगा, क्यूब है। सर ये राइट करना है, नहीं बेटा ये तो लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 115 पे लिखा हुआ है। देखो बुक में 115 पेज नंबर निकालो, वहां सब कुछ लिखा हुआ है। सर जो बोर्ड पर लिखेंगे वो सब कुछ लिखा होगा, है ना। बस आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, उसका मतलब क्या है। ओके, सो नाउ वी हैव ऑन द पेज नंबर 115 वी हैव, सबसे पहले कौन है हमारे पास, हमारे सबसे पहले सॉलिड शेप का नाम है क्यूब। सबसे पहले सॉलिड शेप का नाम क्या है, क्यूब है, राइट। तो क्यूब कैसा दिखता है पहले तो वो हम जान लेते हैं, है ना। क्यूब कैसा दिखता है सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। अच्छा, सबके पास रूबिक्स क्यूब है, सबके पास रूबिक्स क्यूब है। अच्छा, जिनके पास रूबिक्स क्यूब नहीं है वो लोग डाइस ले सकते हैं। डाइस है सबके पास, डाइस जानते हो किसे कहते हैं, जिससे आप लूडो खेलते हो। घर में तो आजकल सब लोग लूडो खेल रहे हैं, है ना। लूडो जिससे खेलते हैं वो डाइस ले लो अपने हाथ में, या रूबिक्स क्यूब भी ले सकते हो आप। Yes, Arnav has the Rubik's cube and many of you have the Rubik's cube. Very good, very good. So you can take a Rubik's cube in your hand or a dice, है ना। तो हम इसके लिए या तो Rubik's cube ले लें, ये एग्जाम्पल है बेटा इसका, और डाइस भी ले सकते हैं, है ना। और क्या ले सकते हैं, डाइस। जिसके पास जो अवेलेबल है वो ले लीजिए, ठीक है बेटा। नहीं है कुछ तो कोई बात नहीं, सर बोर्ड पे बताएंगे, ठीक है। ऐसे आप परेशान मत हो कि मेरे पास ना तो रूबिक्स क्यूब है ना ही डाइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर बोर्ड पर बताएंगे सब कुछ, ठीक है। नाउ आई विल ड्रॉ द क्यूब। अब मैं आपको क्यूब ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है। सो क्यूब इज मेड अप ऑफ स्क्वायर्स। क्यूब किसका बना होता है, देखो रूबिक क्यूब या डाइस आपके हाथ में, तो उसको देखो क्या उसके सारे के सारे फेस, सारे के सारे फेस स्क्वायर से मिलके बने हैं। यस, सारे फेस स्क्वायर से मिलके बने हैं या किसी और चीज से मिलके बने हैं, राइट। अगर मैं ये बॉक्स ले लूं, अगर इस बॉक्स के सारे फेसेस को मैं स्क्वायर कर दूं, सारे फेसेस को इक्वल कर दूं, सारे फेसेस को इक्वल कर दूं तो कितने हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने एक स्क्वायर बना लिया, राइट। सर अब दूसरा स्क्वायर कहां बनाएंगे, थोड़ा सा हम अलग हटके इसका एक और स्क्वायर बना देंगे। सेम स्क्वायर बनाएंगे बेटा, सेम स्क्वायर होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर सेम होंगे रूबिक्स क्यूब में या फिर डाइस में। आप देखोगे, देखो 2 स्क्वायर बन गए, तो ये सामने वाली वॉल बन गई आपकी और ये आपके पीछे वाली वॉल बन गई और आप इसके बीच में बैठे हो, है ना। तो 2 वॉल्स तो बन गई सर, बाकी वॉल्स कहां हैं, देखो बाकी वॉल्स भी दिखने लग जाएंगी अब आपको। देखो ये वाली वॉल है आपके लेफ्ट में, राइट, रेड वाली वॉल आपके लेफ्ट में है ना। अभी देखो, और अभी आप ग्रीन वाली वॉल देखोगे तो ये कहां पर है, आपके राइट में है, राइट। ये लेफ्ट में एक वॉल हो गई, एक राइट में होगी वॉल,
एक फ्रंट में हो गई, सबसे आगे जो दिख रही है आपको, और एक फ्रंट के बिल्कुल पीछे हो गई, आपके पीछे वाली वॉल आप आगे नहीं देख सकते हो, और एक हो गया टॉप, है ना, टॉप में भी जहां पे आपका सीलिंग फैन लगा हुआ है वो टॉप हो गया, और एक हो गया बॉटम, है ना। देखो ध्यान से दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, 4 तो वॉल्स ही हो गई, देखो आप अपने रूम में देखो 4 तो वॉल्स हो गई, एक सीलिंग हो गया और एक फ्लोर हो गया, 6 हो गए। तो these 6 are the faces, these 6 are the faces। अगर मैं यहां पे फेसेस आपको बताना चाहूं तो आप यहां देख सकते हो, फेस अगर मैं बताना चाहता हूं तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो वॉल है उसको मैंने फेस यहां पे बता दिया है, दिस इज अ फेस, ये क्या है, फेस है। ओके, अभी आप देखो ये एज क्या होती है सर, एज क्या होती है, कितने फेस हमने अभी काउंट किए, हाउ मेनी फेसेस वी काउंट, 6 फेस, यस, फेस कितने हो गए, 6 हो गए, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू द एजेस, एजेस कितनी होती है सर, देखो एजेस काउंट करते हैं, ठीक है, आप अपने रूम में एजेस काउंट करो, उतनी ही एजेस होंगी, है ना। देखो सबसे पहली एज, फर्स्ट एज, सबको फर्स्ट एज दिख रही है, हाँ जी, 1 एज दिख रही सबको, यस और नो, जल्दी जल्दी टाइप करते जाओ, यस, 1 एज, सेकेंड एज, यस, थर्ड एज, फोर्थ एज, फिफ्थ एज, सिक्स्थ एज, सेवेंथ एज, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th and 12th edge. How many edge we have now? 12 edge. You can also count in your room. आप अपने रूम में भी काउंट कर सकते हो, जहां 2 वॉल्स मिल रही हैं वही हमारी क्या है, एज है। So this is our edge, right? एज हो गया, तो सर कॉर्नर कहां है, दिस कॉर्नर, एज कितनी हो गई थी, 12 एज, हाउ मेनी एज वी हैव, 12 एज, ओके। नाउ हाउ मेनी कॉर्नर वी हैव, हाउ मेनी कॉर्नर्स वी हैव, जल्दी बताओ, कॉर्नर्स बताओ मुझे जल्दी से, काउंट करके सभी लोग कॉर्नर बताएंगे। ओके, लेट मी काउंट ऑन द बोर्ड, जिनके पास रूबिक्स क्यूब नहीं है और जिनके पास डाइस नहीं है वो लोग बोर्ड पर देखेंगे, बाकी लोग अपने रूबिक्स क्यूब के कॉर्नर बताओगे कितने हैं, बाकी लोग अपनी डाइस के कॉर्नर बताओगे कितने हैं। ओके, जिनके पास नहीं हो यहां देखो बेटा, 1 एक दिख रहा है, हाँ जी, किसी का 4 आंसर आ रहा है, किसी का 8 आंसर आ रहा है, किसी का 12 आंसर आ रहा है, बेटा क्या कर रहे हो, 1 देखो, अभी बोर्ड पर देखो, सभी लोग बोर्ड पर देखो, आपको पहला पॉइंट दिखा, दूसरा देखो, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ, सिक्स्थ, seventh and 8th. There are 8 points you can see. There are 8 points you can see. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैच स्टिक ले लो बेटा, वो सॉरी मैच बॉक्स ले लो, माचिस ले सकते हो आप, मैच बॉक्स ले सकते हो और उसके कॉर्नर्स भी काउंट कर सकते हो, एंड दैट विल बी अ 8 वर्टेक्स। ओके, 8 वर्टेक्स, और ये दिखता कैसा है ये मैंने आपको बता दिया है ना। सॉलिड शेप कैसी दिखती है स्क्वायर की, ऐसी दिखती है। ओके, इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत क्या होती है, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल, इट्स ऑल साइड्स, क्यूब की, क्यूब के लिए बोल रहा हूं बेटा मैं, ओनली फॉर क्यूब, ऑल साइड्स, साइड्स को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, एजेस आर इक्वल, for cube all the edges are equal, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, all the edges are equal, right? और इसके 6 फेस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, all faces are of square, किसके बने होते हैं, स्क्वायर के बने होते हैं, किस चीज के बने होते हैं बेटा, स्क्वायर्स के बने होते हैं।
ओके, रूबिक्स क्यूब में या फिर डाइस में आप देख सकते हो हर एक फेस, हर एक एज बिल्कुल बराबर है, ना कोई एज बड़ी है ना कोई फेस बड़ा है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर क्यूब। ये तो क्यूब के बारे में हो गया, क्यूब के बारे में हो गया सबके लिए, क्यूब समझ में आ गया सबको। नाउ वी आर मूविंग टू द क्यूबॉइड। अब हम किसके लिए मूव करेंगे? क्यूबॉइड के लिए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्यूबॉइड, राइट। क्यूबॉइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो बताओ सर ये दिखता कैसा है? ये आपके मैच बॉक्स जैसा दिखता है। मैच बॉक्स है आपके पास, माचिस जिसको बोलते हैं, मैच बॉक्स ले सकते हो, है ना, MATCH, मैच बॉक्स जैसा दिखता है। और कैसा दिखता है सर? ब्रिक जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? ब्रिक। ईंट देखिए, ब्रिक, यस, विच इज सेम एज क्यूब, यस बेटा। इसके क्यूबॉइड के जो फेसेस, एज और वर्टिसेस होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। आपका जो रूम है वो क्यूब हो या क्यूबॉइड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता फेस, एज और वर्टिसेस में। बुक, यस, यू कैन ऑल्सो सी बुक, बुक भी देख सकते हो। और क्या ले सकते हो आप? रेफ्रिजरेटर, अगर आपके रूम में रेफ्रिजरेटर रखा है तो आप वो भी देख सकते हो। डोर, डोर इज ऑल्सो क्यूबॉइड, बिल्कुल सही है बेटा, रेफ्रिजरेटर, राइट। और डोर भी देख सकते हो आप। और क्या देख सकते हो आप? आपके आसपास की चीजें देखो, सब, हाँ, अलमीरा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? मोबाइल। मोबाइल इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड। देखो वो क्यूबॉइड है। टीवी, बुक, यस, एवरी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्यूबॉइड। अब हम इसको देखते हैं ये दिखता कैसे है। ये दिखता कैसा है? यस, मोबाइल टीवी इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड। टीवी भी लिख देते हैं। आजकल की टीवियां भी ठीक है, फ्लैट टीवीज आ रही हैं। बेडरूम बेड, यस, बेडरूम बेड इज ऑल्सो क्यूबॉइड, क्योंकि हम उसमें भी चीजें रख सकते हैं। पिलो, ना, पिलो इज नॉट अ क्यूबॉइड, राइट। पिलो, हाँ, रिमोट यू कैन से, कैरम यू कैन से, यस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अब हम देखते हैं दिखता कैसे है। सो इट इज लुक्स लाइक दिस। इट इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल्स। हाँ, टेबल, वेरी गुड, टैबलेट, वेरी गुड, ओके। इट इज मेड अप ऑफ iMac. iMac is also a cuboid type. Okay, no problem in that. Laptop is also a cuboid. So it is made up of opposite sides are equal and opposite faces are also same. Right? Opposite faces. Pencil box is also an example. और सर के पास क्या है? Dust. So its opposite sides are equal. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? Opposite sides are equal, right? Opposite sides are equal and opposite faces are same, and opposite faces are same. opposite face same होंगे, आसपास के जो फेसेस हैं वो सेम नहीं होंगे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोग समझ रहे हो बात को? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आई हैव दिस बॉक्स, इसके अपोजिट फेस, मतलब ये वाला फेस और इसके अपोजिट वाला फेस, है ना, ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों सेम होंगे। देखो ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों सेम होंगे, लेकिन इसके पास वाला फेस है वो अपोजिट नहीं होता है। अपोजिट होता है सामने वाला। आपकी गली के सामने वाला जो मकान होगा वो आपका अपोजिट है, और जो आपके पास वाला जो मकान है वो आपका नेबरहुड है, वो आपका अपोजिट नहीं है। समझ में आया? अपोजिट मतलब आपको गली पार करके जाना पड़ेगा। अगर आपका घर यहां है तो आपको गली पार करके जाना पड़ेगा ऐसे, और पहुंच गए, लाओ साहब हमारा सामान दे दो, फिर वापस आ गए अपने घर पे, है ना। अगर आपको गली पार करके जानी पड़ रही है तभी वो अपोजिट है बेटा, ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं क्यूबॉइड को। तो हमने क्यूबॉइड को ड्रॉ किया तो हमें रेक्टेंगल चाहिए, तो इसके अपोजिट फेस सेम होते हैं। तो आपको दो फेसेस दिख रहे होंगे बोर्ड पर, दो फेसेस दिख रहे हैं बेटा, यू कैन, सो दिस क्यूबॉइड हैज, यू कैन सी टू फेसेस हियर, and the third face is this green one,
This is the third face. And you can see the fourth face on your right. आप अपने रूम में राइट हैंड साइड पर फोर्थ फेस को देख सकते हो। एक जहां पे आपकी टीवी लगी हुई है, एक जहां आप बैठे हुए हो, और एक हो गया टॉप और एक हो गया बॉटम। नाउ दिस इज आवर फेस, राइट, एंड दिस इज एज। ये मैंने समझा दिया है आपको कि आपकी जहां पे दो वॉल मीट करती हैं वो हमारा एज है, और कॉर्नर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, राइट। तो हमारा क्यूबॉइड विल बी लुक लाइक दिस। क्यूबॉइड विल लुक लाइक दिस। इट्स अपोजिट फेसेस। दिस फेस is opposite to this face which are similar, right? जो आपका फ्रंट फेस है और जो बैक फेस है वो दोनों भी बिल्कुल सेम है, राइट? अपोजिट फेसेस आर सेम, ठीक है। तो आज के लिए हमने क्यूब और क्यूबॉइड ही पढ़ा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे वी विल लर्न अबाउट सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।